welcome to our YouTube channel, that is Simple Paper. In our last video we had discussed few of the basic concepts of GDP, GNP, and now today we are going to cover the rest of the topics that we had left in our last video. So let's start. In our last discussion we had discussed one of the most important method to calculate GDP, that is value added method or product method or output method. Today we will be covering the rest of the methods, that is income method and expenditure method. GDP is also calculated by summing the income of all the sectors of an economy. जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में एग्जाम्पल में दिया था, एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में जो कि कार मैन्युफैक्चर करता है, तो उनका जो कार प्रोडक्ट है उसका जो मार्केट प्राइस है, तो ईयर में अगर वो एक कार बेच के 100 रुपया कमाता है तो उसका मार्केट प्राइस हो गया 100 रुपीज। तो 100 रुपीज वो अपने जो लेबर्स है, जो लैंड दिया है, जो लोन दिया है, और वो खुद का प्रॉफिट में से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सो 100 रुपीज से जो उनको इनकम होता है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मैंने पिछले एग्जांपल में दिया था लास्ट वीडियो में। इसके लिए आपको नेशनल इनकम का हम लोगों का जो पार्ट 1 वाला वीडियो है वो फिर से एक बार देखना पड़ेगा। उसमें दिखाया गया था कि कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर एक कार बेच के 100 रुपया कमाता है, उसमें से 30 रुपीज वो अपने लेबर और एम्प्लॉयज को देता है। तो 30 रुपीज हो गया लेबर और एम्प्लॉयज का इनकम। ठीक है, अभी इफ वी गो बाय द प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड और आउटपुट मेथड, देन by calculating the market price of the car being sold, we can easily say that the GDP of our country is rupees 100. But if we also calculate the income of various sectors of the economy, then also we can easily calculate our GDP. You can say how? Now the company pays salary or wages to its employees or laborers. It's 30 rupees. Say for example that we had shown in our last video. Now income for the laborers or wages, laborers or employees is rupees 30. The landowner gets his rent for the land is rupees 10. So his income is rupees 10. The person or the bank which gives loan to the producer or business firm is getting a rent of rupees 10. So his income or the bank's income would be rupees 10 also. Now the entrepreneur gets his profit of rupees 50. So his income is also rupees 50. So summing up all these incomes of various factors of production, we can get it is exactly rupees 100. So in the income method, if we sum up all the incomes of all the factors of production in an economy or in a country, we can also by that way measuring the GDP of our country. As we can see in our slide, incomes have been distributed or divided in 3 parts. One is compensation to the employees, that is wages or salaries. Wages meant for the unskilled laborers, that is normally paid on a daily basis, and salaries to the skilled laborers on a monthly, quarterly or yearly basis. So salaries and wages are the payments for the laborers or the employees of a company on a regular basis. This is one part of factor of production, one part for one of the factors of production in an economy. This is
the income of the employees and unskilled laborers. That is the compensation that is being provided by the company to its laborers and employees. Now comes the operating surplus that we had also discussed in our last video. That what is operating surplus? कंपनी अपना लेबर को या एम्प्लॉय को उनका सैलरी और वेज देके जो कंपनी के पास रह जाता है, सपोज डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज 0. ओके, डिप्रिसिएशन कॉस्ट इज 0. नाउ in our last example also, if we exclude the amount of rupees 30 from the income of the company of rupees 100, then हम लोग को जो मिलता है अमाउंट रुपीज 70, वही है ऑपरेटिंग सरप्लस. इसमें क्या रहता है, जो रेंट देना पड़ रहा है लैंड ओनर को वो भी इंक्लूड रहता है, और जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन के लिए वो भी देना पड़ रहा है, वो भी इंक्लूडेड रहता है ऑपरेटिंग सरप्लस पे. और एंटरप्रेन्योर का खुद का प्रॉफिट वो है रुपीज 50. सो 50 प्लस 10 दैट इज रुपीज 70 है. ये टोटल अमाउंट है ऑपरेटिंग सरप्लस. So in this video also, in this slide also, it has been divided into two subparts. That is ownership. Ownership means जो ओन करता है, जो लैंड ओन करता है उसको लैंड ओनर कहते हैं. तो उसको मिल रहा है रेंट. जो कि कैपिटल ओन करता है, जो मनी दिया है बिजनेस में, उसको मिलता है इंटरेस्ट एंड रॉयल्टी ऑल्सो. नाउ द एंटरप्रेन्योरशिप का रहता है प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट टैक्स. एक्चुअली जो अमाउंट रह जाता है एंटरप्रेन्योर को रेंट और इंटरेस्ट देके, उसमें प्रॉफिट होता है और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों ही रहता है, क्योंकि एंटरप्रेन्योर को कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ता है गवर्नमेंट को. तो जो अमाउंट से ही उसको देना पड़ेगा, उसके पास जो बच जाएगा मनी उसमें से ही उसको गवर्नमेंट को कॉर्पोरेट टैक्स भी देना पड़ेगा. तो कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द पोर्शन ऑफ profit, in the portion of entrepreneurship's profit. Now profit can be subdivided into distributed profit and undistributed profit. So what is distributed profit? कंपनी में जो शेयर होल्डर है वो ही कंपनी का प्रॉफिट का हकदार है. तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है. वो कंपनीज एक्ट के मुताबिक एस्टेब्लिश्ड हुआ. तो वो क्या करता है, अगर उसको लगता है कि मैं मेरा प्रॉफिट सारे शेयर होल्डर में पूरा 100% डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो पूरा प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा शेयर होल्डर के बीच. अगर वो अपने खुद का कैपिटल इन्वेस्ट में और ज्यादा प्रोडक्शन के लिए अगर प्रॉफिट में से कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रख देता है और बाकी रेस्ट पोर्शन अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रख देता है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है उसको डिविडेंड कहते हैं. और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कंपनी और जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, जैसे कि विप्रो, एरिक्सन, नोकिया, सीमेंस, किंगफिशर एयरलाइंस, ये सब सेपरेट लीगल एंटिटी है. उसका प्रॉफिट जो शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और वो जो खुद का कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रख देता है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. लास्ट पार्ट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड. मिक्स्ड इनकम उन लोगों के लिए होता है जो कि प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाता है या फिर पार्टनरशिप फर्म चलाता है. जिन लोगों का कंपनी कुछ अलग से सेपरेट एंटिटी नहीं है, जो खुद के बिजनेस खुद चलाता है, वो ही उसका जो प्रॉफिट है वो ही मिक्स्ड इनकम है. जैसे कि लॉयर, जैसे कि सिंगर, जैसे कि कोई आर्टिस्ट, जैसे कि कोई डॉक्टर, इनका जो इनकम है वो है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिनका अलग से कोई सेपरेट एंटिटी या बिजनेस फर्म नहीं है, जो कि खुद प्रोप्राइटरशिप फर्म चलाता है या फिर पार्टनरशिप फर्म चलाता है, और उनका इन्वेस्टर और शेयर होल्डर ही है कंपनी का एंटिटी. कंपनी का अलग सा कोई एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है. उन लोगों के लिए जो इनकम है उसका जो टर्म दिया गया है वो है मिक्स्ड इनकम. ओके, सो इनकम मेथड में
ये 3 इनकम सम करके हमारा कंट्रीज का जीडीपी, we can calculate our country's GDP. Okay, now comes the expenditure method. If we look at the equation first, GDP at market price, MP means market price. GDP at market price is equal to C plus G plus I plus X minus M. This is the equation that we have to remember, because ये equation से ही different स्टेट एग्जाम्स पे या यूपीएससी पे डायरेक्ट इस स्टेटमेंट को लेकर क्वेश्चन या एमसीक्यू आता है. तो वी हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन, दैट इज जीडीपी एट मार्केट प्राइस इन एक्सपेंडिचर मेथड इज कैलकुलेटेड बाय सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम. नाउ सी इज इक्वल टू पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जी इक्वल्स government expenditure on final goods and services, C also personal consumption expenditure on final goods and services, and I is the gross investment both by private and government individuals, that is also equal to gross capital formation. Now X equals export and M equals import. Export means the goods or services that the foreign countries or foreign individuals buy from our nations, and import means the items of goods and services that we buy from foreign countries or foreign individuals. Okay, now I will describe or explain how this equation comes. Why are we adding the C, G, I and X, and why do we subtract the import part? Now GDP का जो बेसिक कंसेप्ट है वह है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट प्राइस क्या है. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करें, क्यों कैलकुलेट करें, ये पहला क्वेश्चन है. इन आवर लास्ट एग्जांपल वी सॉ दैट अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी producing one car annually and it costs ₹100. So वो कार का मार्केट वैल्यू है 100. दैट इज द प्रोडक्ट मेथड और आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, अभी वो कार बेच के कंपनी को 100 रुपीज मिला, वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम हो गया. अभी वो कार बेचने के बाद इनकम हुआ, इसका मतलब क्या है, वो कार कोई खरीदा है, someone has bought the car, उसके लिए ही बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इनकम हुआ है. तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि हम लोग जो खर्च कर रहा है, जो एक्सपेंडिचर हम लोग को हो रहा है अपने गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करने के लिए, वो एक्सपेंडिचर भी हम अगर सम करें तो वो भी जीडीपी कंट्री का, मतलब जो एक्सपेंडिचर हम लोगों का हो रहा है सेक्टर में पूरा कंट्री में, वो अगर सम अप करे तो भी जितना सारा प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है कंट्री में उसका मार्केट प्राइस या फिर जीडीपी निकल आएगा उसमें से सम करने से. तो एक्सपेंडिचर मेथड से भी हम जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं. नाउ पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो होता है वो है वेरी सिंपल, क्योंकि हमारा मार्केट में हम लोग का हाउस होल्ड का डिफरेंट सर्विसेज एंड गुड्स का नीड है. मतलब कोई बाइक खरीद रहा है, बाइक या फिर कार या फिर रेफ्रिजरेटर या फिर फूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स, रॉ वेजिटेबल्स या फिर कोई भी आइटम जो हम लोग के लिए खुद का कंजम्पशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. वो कोई प्रोडक्शन प्रोसेस पे नहीं जाता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स नहीं होता है, वो होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं. जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक सर्विस है. हम लोग का बेटा, हम लोग का चिल्ड्रन जो है, जो स्कूल में जाता है, वो भी एक सर्विस
मिल रहा है, उन लोगों को, वो बच्चों को भी एक सर्विस मिल रहा है स्कूल से, वो सर्विस भी वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर एक सेकेंडरी सेक्टर है, वो भी हम लोग कंज्यूम करते हैं। हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, फ्लैट में रहते हैं, तो उनका जो मार्केट प्राइस है वो भी तो एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी कैलकुलेट करेगा, वो सर्विस सेक्टर है। तो हम लोग का जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है उसको सम अप करके हम लोग का एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी कैलकुलेशन में एक इक्वेशन में आ जाएगा, वो है पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सी। अभी ये हो गया हाउस होल्ड का। अभी गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर रहता है। गवर्नमेंट जो सब्सिडाइज्ड रेट में जो राइस और व्हीट देता है, अभी जो फ्री रेशनिंग सिस्टम आ गया है, तो उसके लिए तो फार्मर्स से गवर्नमेंट को तो खरीदना पड़ता है। गवर्नमेंट तो फ्री में दे रहा है हम लोगों को, मगर गवर्नमेंट को तो फार्मर से ये सब राइस या व्हीट जो प्रोड्यूस्ड है, जो फार्मर प्रोड्यूस करता है, उनसे तो खरीदना पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिंग फॉर अस, तो वो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट का बहुत सारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का जो सैलरी और वेजेस देना पड़ रहा है, वो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, तो वो सारे आ जाएगा इसमें। और नेक्स्ट पार्ट जो रहता है वो है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। सपोज कोई बिजनेस फर्म या कंपनी एक मशीन खरीदा है, तो मशीन तो एक एसेट है जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आएगा, तो वो है इन्वेस्टमेंट, जिससे हमको प्रोडक्शन प्रोसेस में जो काम आएगा वो ही है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, या फिर फिक्स्ड एसेट कोई भी हो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में आएगा वो ही है फिक्स्ड एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एसेट। सो ऐसे जो इन्वेस्टमेंट होता है बोथ गवर्नमेंट सेक्टर पे एंड प्राइवेट सेक्टर पे, वो सब इसमें आएगा, वो है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अभी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, ये हम लोगों का मार्केट में जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है, सभी क्या इंडियन नेशनल्स ही खरीद रहा है? वो तो नहीं। तो फिर हमारा जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है हमारे सिटीजन का, यहाँ के रेसिडेंट का और सिटीजन का जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है या फिर ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन है, इन्वेस्टमेंट है, वो सम करने के बाद भी कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बच जाएगा जो हम फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो भी तो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हो रहा है, वो भी तो जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो उसको भी हम ऐड करेंगे। तो उसके लिए एक्सपोर्ट वाला जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? फिर भी मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो तो नेशनल रेसिडेंट का एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोई दूसरा कंट्री का लोग या दूसरा कंट्री वो बाई कर रहे हैं, तो उनका एक्सपेंडिचर में हो जाएगा। तो हमारे एक्सपेंडिचर के, हमारे नॉर्मल रेसिडेंट या सिटीजन्स का एक्सपेंडिचर सम करने के बाद भी वो आइटम तो कैलकुलेट नहीं होगा जीडीपी में, क्योंकि वो फॉरेनर्स का एक्सपेंडिचर में जा रहा है। तो वो आइटम हम लोग के जीडीपी में कैसे इंक्लूड करना है? तो हमारा एक्सपोर्ट आइटम, जो एक्सपोर्ट का एक हिसाब रहता है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट मैं पढ़ाऊंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जब टॉपिक डिस्कस होगा उसमें रहता है कैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हम लोग हिसाब करते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है, सब इंफॉर्मेशन रहता है गवर्नमेंट के पास।
सरकार के पास। तो अभी समझने के लिए हम लोग एक्सपोर्ट जितना हो रहा है वो भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोर्ट आइटम जो हो रहा है वो तो इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में ही हो रहा है, तो वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके लिए हम एक्सपोर्ट आइटम और गुड्स एंड सर्विसेज को हम ऐड करेंगे। अभी इंपोर्ट क्यों सब्सट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर, ये CGI में टोटल कैलकुलेट हो रहा है। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में कंजम्पशन हुआ हाउस होल्ड का, वो C में, अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हुआ वो G में, और अगर कोई इन्वेस्टमेंट कैपिटल हुआ, कोई फिक्स्ड एसेट पे या फिर लैंड बिल्डिंग में हम लोग इन्वेस्ट किए हैं, तो वो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में इंक्लूड हो जाएगा। तो ये सम करके जो मिलेगा वो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर होगा। मगर इनमें से क्या हम सभी इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है उसके लिए ही खर्च किए हैं? नहीं। There are few items or some of the items for which we expended our money which have come from foreign countries, which have come from different countries across the globe. जो आइटम हम फॉरेन कंट्रीज से यहाँ इंपोर्ट करते हैं उनके लिए भी खर्च किए हैं, तो वो तो हमारा जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होगा, क्योंकि वो डिफरेंट इकोनॉमिक टेरिटरी में डिफरेंट कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो खर्च हम किए हैं इंपोर्ट के लिए वो सारे अमाउंट यहां से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। जो बचेगा वही है हमारा इंडियन इकोनॉमिक टेरिटरी में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हम लोग कैसे कैलकुलेट करें? CGI और X को सम करके, CGI और X को सम करके हमारा टोटल, CGI को सम करके हमारा जो मिल रहा है वो है हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, और X है जो हमारा गुड्स और सर्विस बाहर का कंट्री का लोग खरीद रहा है। तो ये टोटल हो गया हमारा एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट आइटम। मगर एक्सपेंडिचर से जो हम इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज के लिए खर्च किए हैं वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बाहर कंट्री ने बनाया है। तो इंडियन जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए इसलिए हम लोगों को C प्लस G प्लस I प्लस X करने के बाद इंपोर्ट वाला अमाउंट सब्सट्रैक्ट करना होता है। यह है टोटल C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M का एक्सप्लेनेशन। ओके, अभी आता हूं कुछ बेसिक कंसेप्ट में। वो है नॉमिनल इनकम क्या होता है और रियल इनकम क्या होता है। सपोज जीडीपी को हम अभी इनकम ही समझ रहे हैं, ठीक है, इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जीडीपी इक्वल टू नेशनल इनकम अभी समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हमारा नेशनल इनकम और जीडीपी एक ही है। तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम लोग का एक रेफरेंस पीरियड चाहिए। जैसे कि इंडिया के लिए वो रेफरेंस पीरियड है और बेस ईयर है 2011-12 का फिनेंशियल ईयर। ये क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है। मैं सिनेरियो एग्जांपल यहाँ पे दिया हूं, जैसे कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे रियल इनकम में रिफ्लेक्ट होता है उसमें ये कैप्चर होगा। नॉमिनल इनकम जो होता है वो करंट प्राइस पे जीडीपी का वैल्यू मेजर करता है। मैंने बोला था मार्केट प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो मार्केट प्राइस का एक बेस ईयर प्राइस होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करेंगे या फिर मेजर करेंगे कि कोई कंट्री में एक्चुअल जीडीपी ग्रोथ हो रहा है या नहीं। जो बेस ईयर से नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है वो ही है रियल इनकम, और जो करंट प्राइस पे होता है वो है नॉमिनल इनकम। यह है बेसिक कंसेप्ट, और ये क्यों होता है ये एक एग्जांपल के द्वारा आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। वो है सपोज देयर इज ओनली वन car manufacturing company in India and it produces cars annually
and the base price of a car is ₹100. So base price क्या होता है? Base price होता है 2000, सपोज इंडिया के लिए 2011 और 12 में 2011-12 के फाइनेंशियल ईयर पे जिस गुड्स का और जिस सर्विसेज का जो प्राइस था वो ही होगा बेस ईयर प्राइस, वो ही होगा बेस प्राइस। ठीक है, अभी इन द फाइनेंशियल ईयर्स ऑफ 2018-19 एंड 2019-20 का हम लोग कंसिडर करेंगे। सपोज 2018-19 में दिस कंपनी हैड प्रोड्यूस्ड 120 cars and in 2019-20 में it has produced 110 cars and current prices of the car, suppose 2018-19 पे वो कार का वैल्यू हो गया था 110 रुपीज एंड 2019-20 में इन्फ्लेशन ज्यादा हो गया था इसलिए उसका वैल्यू हो गया था 130 रुपीज। ठीक है, अभी लेट्स कैलकुलेट इंडिया जीडीपी एट करंट प्राइस एंड कंसेंट प्राइस। ठीक है, अभी वो कैसे होता है देख लीजिए। अगर हम करंट प्राइस पे 2018-19 का जीडीपी निकालना चाहते हैं तो उसमें क्या देखेंगे, कार का प्राइस है 110 रुपीज और कितना कार प्रोड्यूस हो रहा है 120। सो टोटल कितना वैल्यू है, मार्केट प्राइस है कार का 13,200 रुपीज। ओके, तो ये होगा करंट प्राइस पे इंडिया का जीडीपी 2018-19 फाइनेंशियल ईयर पे। अभी 2019-20 पे क्या होगा, कार का वैल्यू है 130 एंड हाउ मेनी कार्स आर प्रोड्यूस्ड 110। सो द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल द कार्स is equal to 14,300. So it is showing higher GDP than 2018-19. Now the question comes, has India's GDP improved in 2019-20? No, it's certainly not. Why? Because the national income of 2018-19 at constant price is equal to 120 into 100, that is the base year price. 120 cars are produced in that year and 100 is the base price of the car according to 2011-12 price. So it is 12,000. Now national income at constant price of 2019-20 would be 110 into 100, that is 11,000. So 1000 रुपया कम है नेशनल इनकम 2019-20 का 2018-19 का रेस्पेक्ट में। सो जीडीपी कम हो गया है, ये है बेस प्राइस का मतलब। बेस प्राइस क्या करता है, वो इन्फ्लेशन को हटा के एक्चुअल कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसका क्वांटिटी इंक्रीज किया है या डिक्रीज किया है वो मेजर करता है। अगर इन्फ्लेशन होता है और कम प्रोड्यूस होता है तो वो जीडीपी ग्रोथ हुआ है ये मतलब नहीं रखता है, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ तभी होता है जो गुड्स एंड सर्विस अगर हमारा इंक्रीज किया है प्रोडक्शन पे तभी हमारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ हुआ है, ये हम बोल सकते हैं। मगर इन्फ्लेशन के वजह से अगर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ चुका है मगर कम प्रोडक्शन हो गया है पहले से, तो वो जीडीपी ग्रोथ रिफ्लेक्ट नहीं करता है। समझ में आ गया? तो जीडीपी एट कंस्टेंट प्राइस, यहाँ पे सिंस इट हैज बीन रिड्यूस्ड इट मीन्स नो रियल ग्रोथ हैज टेकन प्लेस इन 2019 एंड 20। ये है नॉमिनल इनकम और रियल इनकम का कंसेप्ट। ओके, अभी आता हूं मैं जीडीपी डिफ्लेक्टर के कंसेप्ट पे। नाउ व्हाट इज जीडीपी डिफ्लेक्टर? It is simply nominal GDP divided by real GDP into 100. So if we consider the case of 2019-20, GDP deflator would be 14,300 divided by 11,000 into 100, that is 130%. Now what is that 130%? It is the price rise of the base year price. 2019-20 में एक कार का वैल्यू 2011-12 का बेस प्राइस से 130% बढ़ गया है। इसका मतलब है तो प्राइस राइज कितना हुआ 30%, प्राइस राइज हुआ 30%। यह सिंपल इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने का तरीका।
GDP deflator is actually a method to calculate the inflation rate, the price rise of different goods, of all goods and services in an accounting year with respect to the base year price. Okay, now ICOR. ICOR means incremental capital output ratio. ठीक है, it is defined by del C by del O. Del means incremental capital by incremental output. Okay, suppose जैसे कि मैंने दिखाया था एग्जाम्पल पे, एक कार मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी को 100 रुपीज कॉस्ट बेयर करना पड़ता है, ठीक है, अपना प्रॉफिट रखते। तो अभी वो एक दूसरा कार प्रोड्यूस करने जा रहा है। कोई भी कंपनी में जो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट रहता है, जो कैपिटल का कॉस्ट रहता है, वो फर्स्ट प्रोडक्शन के लिए हाई रहता है। फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन चालू हो जाता है, जब स्मूथली प्रोडक्शन चालू हो जाता है, तब दूसरा या तीसरा और फिर और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उतना कॉस्ट नहीं लगता है, क्योंकि लैंड एक बार ही खरीदना पड़ता है और कैपिटल भी एक ही इन्वेस्टमेंट होता है, लेबर और वेजेस भी सेम ही रहता है। तो जब प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तब दूसरा या तीसरा प्रोडक्शन करने में इंक्रीमेंटल कैपिटल कम लगता है। तो जितना लगता है एक प्रोडक्शन यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए, वो ही है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो। मीन्स सपोज 100 रुपीज बेयर करना पड़ता है कंपनी को एक कार मैन्युफैक्चर करने के लिए। अभी दूसरा कार मैन्युफैक्चर करने के लिए कंपनी कैलकुलेट कर रहा है कि उसको और अगर 30 रुपीज वो इन्वेस्ट करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करे 30 रुपीज, तो वो 30 रुपीज से वो और एक कार प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये है एक, तो उस कंपनी का आइकॉर कितना होगा 30 रुपीज, क्योंकि वो और एक यूनिट कार प्रोड्यूस करने के लिए उसको कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट लग रहा है, ₹30। तो ये जीडीपी का परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। अगर हम लोगों के लिए 4% टारगेटेड जीडीपी ग्रोथ रेट है और हमारा इकोनॉमी का आइकॉर है 4, तो हमारा कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, इंक्रीमेंटल कैपिटल बाय इंक्रीमेंटल आउटपुट इज इक्वल टू आइकॉर। तो आइकॉर है 4 और इंक्रीमेंटल आउटपुट हम लोग चाहते हैं 8%, तो 8 into 4 इज इक्वल टू 32%। हमारा जीडीपी का अगर इन्वेस्ट करे तो हम लोग का 8% आउटपुट ग्रोथ मिलेगा। ये आउटपुट ग्रोथ कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट एमसीक्यूज आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये फॉर्मूला थोड़ा रिमेंबर करना चाहिए। अभी फ्यू बेसिक पॉइंट्स हैं दैट वी हैव टू रिमेंबर। ये इंडिया में हम लोग 3 तरीके से ही जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में हम लोग प्रोडक्शन मेथड में करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग है, उनमें भी प्रोडक्शन मेथड में ही करते हैं। टर्शियरी जो सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, वो इनकम मेथड से करते हैं। और जो सेकेंडरी सेक्टर है कंस्ट्रक्शन का, वो एक्सपेंडिचर मेथड में करते हैं। ये थोड़ा बेसिक पॉइंट्स रिमेंबर करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। ये डिफरेंट एमसीक्यूज में आता है, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यूज में आता है। तो these are the points we have to remember. These are also few related points. That is, most of the developed countries mainly use income method, but countries like India, we use all the methods. Okay. The first estimation of national income of India was done by Dadabhai Nauroji, that we all know, and he estimated, I think, ₹20 per capita income of India at that time. Okay. The first scientific estimation of national income was done by Dr. B.K. R.V. Rao. Here spelling is incorrect. Dr. B.K. R.V. Rao. Okay. In 1931-32. Now the first official estimation was done by the Ministry of Commerce in 1948-49. And since then, Central Statistical Organization
CSO has been estimating the national income of India and related aggregates, and they are published in its annual report, that is National Account Statistics. Okay, these are the points you have to remember because these are frequently asked in many competitive exams. So what are the items that we don't include in national income? That is the intermediate groups, means intermediate items, intermediate goods. Okay, suppose एक स्टील का रॉड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्टील का रॉड, तो वो जो आयरन खरीदेगा, जो रॉड आयरन खरीद लेगा, वो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. या फिर लेस कंपनी जो वेजिटेबल पोटैटो खरीद रहा है मार्केट से, वो होता है इंटरमीडिएट कंजम्पशन. वो नेशनल इनकम में कंप्यूट नहीं होता क्योंकि वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है, उससे फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस जा रहा है, वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है. ट्रांसफर पेमेंट्स, ट्रांसफर पेमेंट्स कैसे होता है? लाइक गिफ्ट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ओल्ड एज पेंशन, डोनेशन, स्कॉलरशिप, ये सब कहता है कोई सर्विस के विदाउट एनी सर्विस जो लोग को ये ट्रांसफर पेमेंट्स मिल रहा है, उन लोगों को कोई सर्विस देना नहीं पड़ रहा है इसके लिए. तो जो सर्विस नहीं हो दे रहा है, जो वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है जीडीपी में, तो वो इसलिए कैलकुलेट नहीं हो रहा है क्योंकि वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है जीडीपी में. कंट्री का इकोनॉमी या ग्रोथ में वो कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है, वो गवर्नमेंट दे रहा है अपने खुद का प्रॉफिट से या इनकम से. ओके, सेल एंड परचेस ऑफ ओल्ड गुड्स, जब हम कोई सेकेंड हैंड गुड परचेस करते हैं वो कंसिडर नहीं होता. क्यों नहीं कंसिडर होता? क्योंकि वो जब पहले कोई पर्सन खरीदा था तो वो तो उस समय ही जीडीपी में कैलकुलेट हो गया था. वो अभी दूसरा कोई आदमी को वो बेचेगा तो वो जीडीपी क्यों कैलकुलेट होगा? वो तो डबल काउंट हो जाएगा. वो सेम चीज जब फर्स्ट हैंड में कोई खरीदता है, जैसे कि कोई शोरूम में से अगर कोई न्यू ब्रांड कार खरीदता है या फिर कोई भी चीज जब शोरूम से या दुकान से खरीदता है तो वो है फर्स्ट हैंड एक्सपेंडिचर. अभी वो ही जीडीपी में कैलकुलेट होगा. जो अभी उस चीज को कोई दूसरा आदमी को बेचेगा वो जीडीपी में नहीं कैलकुलेट होगा क्योंकि वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है. स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्यों नहीं होता? सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स, क्योंकि वो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है. किसी एक शेयर को होल्ड कर रहा है, कोई एक पर्सन शेयर को होल्ड कर रहा है तो ऑलरेडी ही हैज इन्वेस्टेड. तो इट इज लाइक सेल एंड परचेज ऑफ ओल्ड गुड्स, ओनरशिप चेंज हो रहा है मगर जीडीपी में कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. इसलिए इलीगल इनकम आप लोग समझ ही पा रहे हैं, इलीगल इनकम कभी भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट नहीं होगा. हाउस होल्ड सर्विसेज, हमारा मम्मी या फिर कोई भी हाउस होल्ड सर्विस जो देता है हाउस वाइफ, वो जीडीपी में कैलकुलेट नहीं होता है.